Okay, so we'll begin with week three inflammation, the silent problem. Just yeah. So बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि दे फील टायर्ड और हैव अ बॉडी पेन और दे गेन वेट इजीली. ठीक है, ऑफन हिडन इन्फ्लेमेशन इज देयर विच स्टेज इनसाइड द बॉडी. ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट हियर टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली अगर हम देखें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. One is the short term inflammation, which is actually good for the body and which we call as a body's defense system is working. ठीक है, so इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे if you get a cut, ठीक है, so the skin becomes or the area becomes red. ठीक है, so that's normal. ठीक है, but when the inflammation stays inside the body for the longer time, ठीक है, so it causes problem. ठीक है, तो common signs क्या होंगे उसके? You can feel tired all the time. ठीक है, आप you are sleeping like for 8 hours proper but still you are feeling tired. ठीक है, next can be the body pain or the joint pain, राइट. ब्लोटिंग हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्रेन फॉग हो सकता है. सो मेनी पीपल थिंक दैट इज नॉर्मल, बट दिस इज ऑफन लीडिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन विच इज देयर इनसाइड द बॉडी. ठीक है, so in today's class we are going to understand what inflammation really is. होता क्या है, ठीक है, why it causes tiredness and pain. ठीक है, why weights get stuck. ठीक है, बहुत सारे लोगों मतलब when you start with the weight loss freshly it goes very good, then उसके बाद weight plateau भी आपने देखा होगा कि लोग कुछ लोग बोलते हैं. ठीक है, so what why the weight gets stuck, what is the role of the food, stress and lifestyle, and what can be the simple daily healing tools. हम कैसे इसको इन्फ्लेमेशन को लोअर डाउन कर सकते हैं टू अचीव आवर टारगेट हेल्थ. Okay, so as I said that inflammation is body's defense system. ठीक है, so this is how the body protects and heal itself. ठीक है, so इस टर्म में fever is also like a kind of a acute inflammation कि थोड़े टाइम के लिए वो आया because of the infection. So the body has raised its temperature to fight with the infection, but उसके बाद वो settle down हो गया. ठीक है, another example can be if you get a cut or a mosquito bite. ठीक है, so that area becomes red or swells for some time. ठीक है, but this is actually good. ठीक है, because this is body's repair mechanism. ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव है और शॉर्ट टर्म है. ठीक है, बट chronic inflammation is always long term and is always usually it's invisible. ठीक है, until and unless you get a test done and something and then damages the tissue silently. ठीक है, so लॉन्ग टर्म में अगर वो इन्फ्लेमेशन रह जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को प्रॉब्लम करेगी. ठीक है, स्लोली वो क्या करेगी, वो डिग्रेड करेगी या डैमेज करेगी टिश्यूज को. ठीक है, विच विल लीड टू अ पेन और अ टायर्डनेस और अ वेट लॉस इश्यूज. ठीक है, सो द इन्फ्लेमेशन इज नॉट ऑलवेज बैड. ठीक है, only long term hidden inflammation is harmful for the body, right? So what is that silent signs of inflammation? ठीक है, but silent means आप उसको देख नहीं सकते but you can feel it through small daily symptoms. ठीक है, so it can be the physical symptoms, it can be the mental or emotional symptoms. फिजिकल सिम्टम्स में मेनी पीपल एक्सपीरियंस कांस्टेंट टायर्डनेस. ठीक है, इवन आफ्टर स्लीपिंग, जैसे मैंने अभी बताया. जॉइंट पेन बॉडी एक हो सकता है. अभी ये जो भी सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है, बॉडी फैट, वेट गेन, स्किन इश्यूज, हेयर फॉल. ठीक है, सो दीज आर कॉमन बट नॉट ऑलवेज नॉर्मल. ठीक है, सो दे कैन बी अ साइंस ऑफ अ इंटरनल इरिटेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेंटल एंड इमोशनल साइंस. सो inflammation also affects the mind and just not the body. ठीक है, when I say so that means that mental signs में क्या होगा, ब्रेन फॉग होगा या पुअर फोकस होगा. यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट
on one thing, ठीक है, आप बैठे बैठे कुछ और कर रहे होगे and you are thinking something else, ठीक है, और mood swings which is very common, ठीक है, irritability, irritate हो गए, ठीक है, then anxiety or feeling low. So if you notice many of these symptoms like two or three, so the body is basically asking for help. It's basically asking to look over the food, the rest, the lifestyle balance, which needs to be improved to overall give a improvement in all these symptoms. Okay, so why this weight gain happens? Weight gain is not because that आप ज्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है, sometimes the body is out of balance, ठीक है, so even when normal eating can lead to a weight gain. Usually क्या होता है, जब आप अपना पैटर्न देखते हो तो people also say that खाना तो मेरा normally है but still कहीं ना कहीं that weight gain is coming, ठीक है, so this can be because of hormonal imbalance, ठीक है, for example जैसे if someone is very very stressed all the time, ठीक है, the stress hormone goes up, ठीक है, especially your cortisol, ठीक है, so then the body starts storing more fat, ठीक है, especially around the belly, ठीक है, फर्स्ट रीजन कैन बी दिस, सेकेंड रीजन कैन बी स्लोअर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दो लोग एक जैसा खाना खा रहे हैं बट वन इज बर्निंग दैट फूड फास्ट एंड वन वन इज स्टोरिंग दैट फूड, ठीक है, इवन ऑन द सेम कैलोरीज, सो कहीं ना कहीं दैट इज बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म हैज ऑल्सो गॉन स्लोअर, ठीक है, थर्ड थिंग कैन बी वाटर रिटेंशन एंड पफीनेस, ठीक है, बिफोर पीरियड्स जैसे यूजुअली और आफ्टर पीरियड्स, or there's a particular craving of like salty food. So kind of a sudden weight gain, like 1 or 2 kgs also. Okay, so that can be seen. Okay, but that's not the that is not fat. It is basically water is being held in the body. So body is kind of retaining water. Because को water retention usually simple language water retention बोल सकते हैं. Then is the sugar craving. ठीक है, so increased sugar craving especially in the afternoon, ठीक है, obviously it will give you energy, like energetic you will feel for like first 30 minutes or something, but suddenly then you feel tired and hungry more again, ठीक है, so this is like a sugar salt cycle going on, ठीक, so you eat more snacks, slowly that weight increases, ठीक है, so weight gain is not only about how much we eat, it is also about how much your body is working inside. ठीक है? Okay, so what triggers actually these inflammation? Inflammation usually does not come with 1 or 2 days ka cheating or something. It usually comes with small daily habits repeatedly again and again. ठीक है? और क्या foods इसको trigger करते हैं? जैसे certain food can irritate the body even eaten too often. ठीक है? So the example can be the sugar in the bakery, like daily biscuits, cakes, sweets with tea, ठीक है, then maida or fried foods like samosas and noodles, white bread, then chips and all, ठीक है, packaged snacks like namkeen, cookies, instant food, then reheated oils. So example like using the same oil for frying again and again. ठीक है, so these food will increase the internal irritation over a period of time, will lead to more of craving. ठीक है, second reason can be the stress and sleep. So when the mind is always stressed, ठीक है, the body is always stays in the stress mode. ठीक है, that means क्या होगा, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा, वो बार बार रेज हो रहा है जिसकी वजह से यू आर like worrying all the day or work pressure. So these things can lead to body into always a fight and flight mode kind of a thing. ठीक है, so then and a poor recovery like sleeping late, using phone for 2 hours, 3 hours, not letting your body digitally detox. So these are all the root causes which will lead the body into inflammation slowly. ठीक है, और इसके अलावा इमोशनल ओवरलोड जैसे एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, ठीक है, इवन इफ द फूड इज ओके, constant stress
can still causes the inflammation. ठीक है, so not only your sleep cycle, not only your food cycle, but your lifestyle also matters. ठीक है, उसका भी बहुत, जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में टीवी देख रहे हो आप बैठ के, ठीक है, या सारा दिन ऑफिस में बैठ के यू आर स्क्रॉलिंग ऑन द फोन, ठीक है, नो सनलाइट, ठीक है, सिटिंग ऑल द टाइम इंडोर, देन डिहाइड्रेशन, ड्रिंकिंग वेरी लिटिल वाटर, कि जी प्यास ही नहीं लगती, ठीक है, नो मूवमेंट, नो एक्सरसाइज और नो वॉकिंग, ठीक है, सो द इन्फ्लेमेशन इज क्रिएटेड बाय द डेली हैबिट्स, ठीक है, जो जो आपकी डेली हैबिट्स हैं उसी से वो क्रिएट होता जाएगा साइकिल, ठीक है, एंड डेली हैबिट्स कैन ऑल्सो, अगेन वही चीजें आप रिपीटेडली वही करते जा रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल लीड द बॉडी इनटू इन्फ्लामेशन, ठीक है, ओके, सो बट नाउ दो वी हैव टच्ड अपॉन द इन्फ्लेमेशन, बट अब उसको काम कैसे करना है, ठीक है, सो वो फूड्स, वो एड ऑन या वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, 8.2 देख रहे हो, सो वो आप शिफ्टिंग वाइटल्स देख रहे हो, which is post giving PCM to the patient, है ना? तो कैन इसीलिए यू वो जस्ट कम आ रहा है म्यूट अभी योर सेल्फ? टेम्परेचर, वो स्पाइक इज लेस। जब वो आया था तो ऊपर डॉक्यूमेंटेड है कि 100 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। So, yeah, so anti-inflammatory food. Okay, so we don't need a fancy food. Just with simple daily choices, we can improve on with the health. Okay, like healthy fats. Okay, so ghee हो गया, nuts हो गया, seeds हो गया, coconut हो गया. Okay, so 4-5 almonds, a teaspoon of ghee on the roti or a coconut chutney. Okay, so these are the examples which can keep the body satisfied. ठीक है, फैट पे बॉडी ज्यादा देर सेटिस्फाइड रहती है, स्टे करती है उसके ऊपर, so you can use a good fat rather than using a trans fat, or a repeatedly reusing of oil should be avoided, ठीक है, second is the protein, ठीक है, good quality protein, दाल हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, people who are non-veg they can have eggs or fish, so dal probably in the lunch, or paneer bhurji or boiled eggs taken in the breakfast, ठीक है, or maybe people who are non-vegetarian, that fish curry can come, so protein help to repair the body and reduces the craving, ठीक है, जब भी आप कोई भी मील में प्रोटीन ऐड करते हो तो उसका भी सैटिस्फैक्टरी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे सिंपल कार्ब्स खाओगे थोड़ी देर में यू विल फील हंग्री, लेकिन जब एक बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर आपकी मील में होगा, जैसे सपोजिंगली लंच टाइम में अगर दही भी है तो वो भी आपको सैटिस्फैक्टरी लेवल सपोज देगा या सिस्टम एक गलती कर गई सेटिस्फैक्शन तो तुम देगा। भेजने से पहले चेक करके उसको ठीक तो करा लो। आपको याद है थोड़े टाइम पहले क्या होता था, ऐसे पेशेंट एडमिट कर देते थे और हमारे हु इज दिस जूम यूजर? सॉरी, so then come the category of vegetables and fruits like palak हो गया, beetroot हो गया, carrot हो गया. So these are automatically rich in antioxidants. ठीक है, ऐसे ही pomegranate हो गया, papaya हो गया, आंवला हो गया, again vitamin C also. So think of a colorful plate. More color means more vitamins and better healing. ठीक है, not even vegetables and fruits but the spices also like the turmeric, the ginger, the cinnamon, ठीक है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि cinnamon water ले लो या ginger tea ले लो, ठीक है, so because they have anti-inflammatory properties, ठीक है, so that's why and they are like readily available. Even I तो say like कि जब मैं बोलती हूँ कि green tea, usually this comes as a question कि कौन सी green tea अच्छी है, so if you use these like grandma's concoctions they are also fine, but yes obviously don't overdo because इनसे बहुत ज्यादा बॉडी कई बार डिहाइड्रेटेड हो जाती है, या people only take like धनिया पानी, जीरा पानी and all those things and then they miss the diet, so along with the diet these all spices and condiments can be used, ठीक है, which will work as a natural medicine and they are like from your kitchen only, ठीक है, and most importantly is hydration.
ठीक है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स टू फ्लश द टॉक्सिन्स एंड रिड्यूस द ब्लोटिंग। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पानी जो है उसको यूजली लाइक इफ यू आर सीइंग अ पीएचपी पेशेंट लाइक प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज, तो people usually forget to drink water especially in the winter season। ठीक है, क्योंकि जो वो जो थर्स्ट क्वेंच है वो नहीं होता, या कई बार ऐसा भी होता है कि यू आर हैविंग इनफ वाटर बट वो पानी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मिनरल्स टू द वाटर, तो उससे भी it becomes improved। ठीक है, स्पेशली when you crave for tea coffee in the morning, so that time you can use like warm water with 2 3 drops of lemon, and I'm saying drops, not overdo it like with a full lemon or something, and maybe a pinch of turmeric and a black pepper. So this as a drink will solve the problem even in the morning hours or in the late night hours when there is no meal। ठीक है, so these simple home food eaten regularly will slowly calm the inflammation and improve the energy level। ठीक है, so इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है आज सच। ठीक है, कोई भी मेडिसिन नहीं। अगर आप ज्यादा लाइक इफ यू मोर कंप्लेन ऑफ पेन अगेन एंड अगेन, तो doctor might start with a steroid or something, but then no medication is helpful in controlling the inflammation. Rather, the hidden inflammatory foods like the sugars, the seed oils, ये सारी चीजों को जब आप हटाओगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम हो। ठीक है। Okay, so what to limit? Sugary drinks and juices, bakery, fast food, ये सबको पता है, refined oils, excess gluten and dairy. So people become, जब एक सिस्टम इन्फ्लेम्ड है, जब इन्फ्लामेशन है, तो कई बारी वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है कुछ फूड्स पे, स्पेशली ऑन व्हीट, ग्लूटन। ठीक है, उसमें भी ये देखा गया है कि जो ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं व्हीट के, लाइक सूजी, मैदा, सो दे रिएक्ट मोर। ठीक है, एंड व्हेन यू फ्राइड देम तो फिर वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सेम इज विद द डेयरी। ठीक है, तो डेयरी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल फाइंड इट चैलेंजिंग, लेकिन वो गलत फूड कॉम्बिनेशंस की वजह से भी हो सकता है। सो यू हैव टू चेक कि वो किस वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्लूटेन या डेयरी सेंसिटिव हो गए, आपको फूड एलर्जी हो गई या कुछ भी, बट देन कई बारी जब इन्फ्लामेशन होती है तो बॉडी टाइम लगाती है इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, bottled juices हो गए, they are not a very good foods in this category and should be avoided। rather वो आपको ज्यादा cravings देंगे। ठीक है, सेम इज विद द बेकरी, केक, पेस्ट्रीज एंड ऑल। अगेन reused oils should be totally avoided, even the refined versions also should be avoided। तो हर तेल के ऊपर लिखा होता है ये फिजिकली रिफाइंड है या ये केमिकली रिफाइंड है। ठीक है, सो आप पढ़ सकते हो उसके लेबल से। Then comes is your packaged snacks like ready to use foods, chips हो गए, instant noodles हो गए, cookies हो गए। So they are actually low in nutrition and they are high in fats। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में maltodextrin और artificial sugars, preservatives, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डली होती हैं, जिसकी वजह से भी it is difficult for the body to digest them। ठीक है, in one go। सो इट इज नॉट अबाउट नेवर ईटिंग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन जहां जहां पे हो सके वहां वहां पे फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो इनकी, सो दैट द बॉडी शुड बिकम काम। ठीक है, फूड इज इम्पॉर्टेंट बट डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। तो दोनों ही चीजें जरूरी है। ठीक है, लाइफस्टाइल रीसेट टूल्स में sleep is very very important, so it's always advisable to take a one go sleep rather than taking a nap in the afternoon for some time। This will disturb your overall sleep, and then फिर रात को नींद नहीं आ रही है 11 12 बजे तक, you are scrolling the phone, so it's always better कि 1 से 1.5 घंटा पहले you should screen off। ठीक है, this is the way only how you can digitally detox your body।
ठीक है. सो ट्राई टू स्लीप ऑन सेम टाइम एवरी डे. ठीक है. एंड यूजिंग फोन एंड टीवी लेट नाइट कीप्स द बॉडी एक्टिविटी गोइंग ऑन. ठीक है. सो बॉडी को जो है अगले दिन टायर्डनेस फील होगी. उस टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. सेकेंड थिंग इज मूवमेंट. तो 30 मिनट्स वॉक और योगा. सो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, इवन अ सिंपल वॉक, इवनिंग वॉक आफ्टर डिनर विल हेल्प डाइजेस्ट द डिनर. ऑल्सो इट रिड्यूसेस द स्टिफनेस. ठीक है. बेसिकली तो ब्लड सर्कुलेशन है जो इम्प्रूव होता है व्हेन यू डू अ वॉकिंग और समथिंग और स्ट्रेचिंग. सो बट देन दैट इज वेरी वेरी असेंशियल फॉर द बॉडी. ठीक है. स्ट्रेस कंट्रोल करना बाय मेडिटेशन और बाय जर्नलिंग. ठीक है. राइट योर थॉट्स. ठीक है. ट्राई टू गो डीप ब्रेथ फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग. ठीक है. नेचर टाइम. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर ग्राउंडिंग बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज अ एनिमल बीइंग. ठीक है. बॉडी इज जस्ट लाइक अ एनिमल बीइंग. सो जब हम सैंड में जाते हैं या जब हम ग्रास पे जाते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है उससे भी ये देखा गया है कि हम डिस्ट्रेस होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड कुछ टाइम अपने आप को देना बहुत जरूरी है. लाइक 5 मिनट्स टेकिंग अ वॉक इन अ फ्रेश एयर. ठीक है. सो दीज थिंग्स कैन काम योर माइंड. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हेल्प करेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लाइक मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप सो योर एनर्जी लेवल इज हाई. So by the time it is evening or night, your energy level should go down. But with this digital products available like phones, TV and everything, वो एक्साइटमेंट जो है वो जाती ही नहीं है. और यही एक रीजन है कि आपका ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं काम ही नहीं हो पाता. तो उस को अचीव करने के लिए स्लीप, मूवमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल, डिटॉक्स हैबिट्स. ठीक है. स्पेशली जिसमें अगेन फाइबर का अच्छा इंटेक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो. अर्ली डिनर करें. ठीक है. ट्राई टू डू डिनर ऑन द सेम टाइम. ठीक है. सो दैट द बॉडी को भी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो जल्दी मिल जाए एंड यू कैन अचीव योर स्लीप अर्ली. ठीक है. डाइजेशन हो रही होगी तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू डिस्कम्फर्ट वाइल स्लीपिंग. ठीक है. और ईटिंग डिनर 2-3 आवर्स प्रायर योर स्लीप. ठीक है. अगेन इससे भी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी. तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल लिटिल हैबिट्स विच विल improve the overall body's capacity. ठीक है. क्या होना चाहिए, एक सिंपल डेली रूटीन क्या होना चाहिए? तो वेरी सिंपल. मॉर्निंग यू कैन स्टार्ट विद वार्म वाटर और टर्मरिक और जीरा वाटर. स्टे इन सन फॉर सम टाइम लाइक 5-10 मिनट्स. ठीक है. आफ्टरनून में उसके बाद जैसे यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट या जो भी आप ले रहे हो वो शुड बी अ बैलेंस प्लेट. ठीक है. सो उसमें प्रोटीन, गुड फैट, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. इवनिंग अगेन यू कैन गोइंग फॉर स्ट्रेचिंग और समथिंग, और फिलर्स के तौर पे यू कैन हैव लाइक हर्बल टी, ऐसा कुछ ले सकते हो. एंड अर्ली स्लीप. ठीक है. मैग्नीशियम रिच फूड्स लाइक कर्ड हो गया, आपका ये हो गया पालक हो गया. ठीक है. सो दिस विल ऑलवेज हेल्प. ठीक है. नट्स हो गया, बनाना हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया. So these all things actually are good sources of magnesium, which will help to relax the muscles. Also, they will help to improve the sleep quality. ठीक है. कुछ चीजें नेचुरल भी लेनी चाहिए ना, हर चीज का सप्लीमेंट तो नहीं लेना चाहिए. सो सिंपल डेली रूटीन, थोड़ा सा प्लानिंग अगर यू कैन डू लाइक 1 डे प्रायर, सो उससे ये होगा कि एक स्मूथ पैटर्न चलेगा ऑफ द मील्स ऑफ योर एक्टिविटी. एंड द बॉडी विल फील मोर लाइटर एंड मोर कामर एंड मोर एनर्जेटिक द नेक्स्ट डे. ठीक है. हसल बसल कम होएगी तो ऑब्वियसली everything will going to improve. Now let's do a small self check. ठीक है. So give yourself a score from like 1 to 5. ठीक है. So 1 means very poor and 5 means very good. ठीक है. So ask yourself these questions. So how is my energy? How is my sleep quality? How is my craving every day? ठीक है. जॉइंट पेन्स होती हैं नहीं होती हैं? ठीक है.
मूड कैसा रहता है मेरा, ठीक है। सो राइट 3 हैबिट्स यू यू कैन स्टार्ट लाइक दिस वीक। अभी से अपना मैनेज करना शुरू करो, थोड़ा सा देखो कि इनमें से क्या क्या चीजें मेरी अफेक्टेड हैं, जो मेरी 1 पे आ रही हैं या मेरी 2 पे आ रही हैं, और जहां पे मेरे को काम करना शुरू करना है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। ड्रिंक मोर वाटर हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, स्लीप अर्लियर हो सकता है। सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स will able to give you uh, uh, like a good impact or a better impact in the future, ठीक है। and these are the things how you can uh, achieve a balanced body, ठीक है, with less of inflammation, okay। so inflammation is reversible, sorry, small daily changes in food and sleep and movement will lead to mindset, better energy, better digestion, balanced weight, and calmer body. ठीक है? So remember all these things like your food, your sleep, your movement, your mindset. ठीक है? जब ये सारी जो habits हैं वो improve होंगी, so you will start noticing a better energy, better digestion. ठीक है? And a better and a calmer body. ठीक है, so big changes starts with a small daily steps. Okay, so this was all for today.